Hi, good morning, my dear student. Today we are going to read class 11th history, chapter 4, the Central Islamic Land. In this chapter, we have discussed the various important topic like Abbasid revolution, rise of Islam, Caliphs, Umayyad, and the expansion of the Muslim empire. We have also read in this chapter the Crusades. And in my last video, I have taught you that agriculture and economy of the Islamic empire. Today we are going to read the next topic, the learning and culture. In this topic, we will discuss the various important things which directly indicate about the literature, about the intellectual person of the Islam, what they wrote, what they think, and which type of their intellectuality expand on the worldwide level, particularly in the Central Islamic land. So let's start your chapter. Chapter is learning and culture. Learning, it means सीखना, इट मीन्स उसकी विद्या, और कल्चर मतलब संस्कृति. इस्लामिक विद्या और संस्कृति के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. इस्लामिक जो टीचिंग्स थी उनके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. एज द रिलीजियस एंड सोशल एक्सपीरियंसेस ऑफ द मुस्लिम इंडिपेंडेंट थ्रू contact with other people, the community was obliged to reflect on itself and confront issue the the pertaining up to God and the world. What would be the idea conduct of Muslim in public and private? What is the object of certain, and how does know what God want from his creatures? How can understand the mystery of universe? Answer to such questions came from learned Muslim who acquired and organized knowledge and different kind of strength the social identity of the community, as well as to satisfy their intellectual curiosity. Dear student, author want to inform you that in the starting times, when Islam emerged in the central part of Asia, I mean to say that Middle East, there are so many questions arise. The philosophical question arise, like what is Allah, and such type of other things. So they decided कि हमें इसके बारे में काम करना है. और इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब अन्य लोगों के साथ संपर्क में मुसलमान आए तो मुसलमानों के धार्मिक और सामाजिक अनुभव में गहराई आई. मुस्लिम समुदाय को अपने ऊपर सोच विचार करना पड़ा और अल्लाह, इट मीन्स गॉड, इट मीन्स ईश्वर, और संसार से जुड़े जो मुद्दे थे उनको उनसे जूझना पड़ा. उनसे जो क्वेश्चन किए गए उनको उसका आंसर देने के लिए तैयार होना पड़ा. एक मुसलमान का आदर्श आचरण सबके सामने और अकेले में कैसा होना चाहिए, सृष्टि रचना का क्या उद्देश्य है, और कैसे व्यक्ति यह कैसे जान सकता है कि ईश्वर इसके द्वारा पैदा किए जीवों से क्या चाहता है, भगवान ने जिसे बनाया उसे भगवान क्या चाहता है, कोई सृष्टि के रहस्यों को कैसे समझ सकता है. इन प्रश्नों के उत्तर मुस्लिम विद्वान ने देने का प्रयास किया. उन्होंने समुदाय की सामाजिक पहचान को मजबूत बनाने के लिए और अपनी बौद्धिक जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए
विभिन्न प्रकार के ज्ञान प्राप्त करना प्रारंभ किया, उसको संकलित किया, टेक्स्ट के रूप में लिखा, किताबों के रूप में बाइंड किया, और इस तरीके से शुरू हो गया इस्लाम में एक नई परंपरा, कल्चर एंड लर्निंग की। यहीं से लर्निंग और कल्चर की परंपरा शुरू हुई, जब लोग क्वेश्चन करने लगे कि हमें किसने बनाया, अल्लाह ने हमें बनाने के पीछे उनका क्या उद्देश्य है, और फिर हमारा क्या उद्देश्य है, हम अल्लाह को कैसे जानेंगे। इस तरह के तमाम सारे क्वेश्चंस, स्पिरिचुअल क्वेश्चन, फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस एंड जनरल क्वेश्चंस, when the ulema face such type of question, they start learning and compile the text on the behalf of their experience of the knowledge। अपने अनुभव के ज्ञान के आधार पे उन्होंने इसको लिखना शुरू किया, इस किताब को कंपाइल करना शुरू किया, और यहाँ से एक नई परंपरा का विकास इस्लामिक कल्चर में दिखाई देता है। वो इस्लाम जो भी आयावर थे, वो इस्लाम जो बारबेरियंस थे, जो नए क्षेत्रों को जीतना, लड़ना, अब वो एक नई परिपाटी की तरफ आकृष्ट हो रहे थे, लर्निंग की तरफ, और ये लर्निंग उन्हें एक नए कल्चर के रूप में नया स्वरूप देने का प्रयास कर रहा था। फॉर रिलीजियस स्कॉलर्स द उलेमा नॉलेज इल्म derived from the Quran and the model behavior of the Prophet Sunnah. Prophet Sunnah was the only way to know the will of God and provide the guidance in the world. The ulema in the medieval times devoted themselves to writing tafsir and documenting the Muhammad's authentic hadith. Some went on the prepared body of law or Sharia, the strength path of the governed, the relationship of Muslim with God through rituals, ibadat, and with the rest of the humanity through social affairs, the mumalat. In framing Islamic law, jurists also made use of reasoning, qiyas, since not everything was apparent in the Quran or Hadith, and life in the interpretation of source and methods of jurisprudence led to the formations of four schools of law. Mazhab in the 8th and 9th century. These were the Maliki, Hanafi, Shafi and Hanbali schools, each named after the leading jurist, faqih, the last being the most conservative. The Sharia provided the guidance on the possible legal issue within Sunni society, though it was more precious on the questions of person, status, marriage, divorce and inheritance than one commercial matter or penal and constitution issue. Dear student, author want to inform you for the religious scholars ulema knowledge ilm derived from the Quran and the model behavior of the Prophet Sunnah। कहता है धार्मिक विद्वान जिन्हें उलेमा कहते थे के लिए कुरान से प्राप्त ज्ञान, इल्म और पैगंबर का आदर्श व्यवहार सुनना ईश्वर की इच्छा को जानने का एक मात्र तरीका है, और वह विश्व में मार्गदर्शन प्रदान करता है। मध्यकाल में, मिडिल एरा में, उलेमा अपना समय कुरान पर टीका, तफसीर लिखने में और मोहम्मद की प्रमाणिक उक्तियों और कार्यों को लेखबद्ध हदीद करने में लगाते थे। उलेमा का मकाम था कि कुरान पर टीका लिखें और जो प्रोफेट मोहम्मद की प्रमाणिक बातें जो उन्होंने अपने जीवन में कही थीं उनको लिपिबद्ध करें, लेखबद्ध करें। कुछ उलेमा ने कर्मकांड, इबादत के जरिए ईश्वर के साथ मुसलमानों के संबंध को नियंत्रित और सामाजिक कार्यों के जरिए बाकी इंसानों के साथ मुसलमानों के संबंध को नियंत्रित करने के लिए कानून अथवा शरिया, जिसका शाब्दिक अर्थ था सीधा रास्ता, तैयार करने का भी काम किया। कहने का तात्पर्य ये है
कि कुछ मुसलमानों ने एक सामाजिक नियम भी बनाए जिससे समाज को, मुस्लिम समाज को कंट्रोल किया जाए। ये शरिया कहा गया। शरिया से पूरे मुस्लिम समाज को व्यवस्थित रूप देने का प्रयास मुस्लिम विद्वानों के द्वारा किया गया। आगे कहता है कि कुछ उलेमा ने कर्मकांड इबादत के जरिए ईश्वर के साथ मुसलमानों के संबंध नियंत्रित किए। सामाजिक कार्य मुआमलात के जरिए बाकी इंसानों के साथ मुसलमानों के संबंध को बताया। और फिर एक नया कानून जो बना, जिसको शरिया कहा गया था, तैयार किया गया। इस्लामी कानून तैयार करने के लिए विधिवेत्ताओं ने तर्क और अनुमान, इस्लामिक कानून को बनाने के लिए जो मुस्लिम जो विधिवेत्ता थे, लॉ बनाने वाले लोग थे, उन लोगों ने तर्क और अनुमान, कियास का इस्तेमाल भी किया, क्योंकि कुरान और हदीस में हर चीज़ प्रत्यक्ष नहीं थी और शहरीकरण के कारण जीवन डे बाय डे जटिल होता जा रहा था, डिफ़िकल्ट होता जा रहा था। जो रिसोर्सेस हैं, स्रोतों के अर्थ, जो रिसोर्स थे उनके अर्थ, उनके निर्णय और विधिशास्त्र मतलब लॉ के अकॉर्डिंग तरीकों के बारे में लोगों में मतभेद के कारण 8वीं 8 और 9th सेंचुरी में कानून की 4 शाखाएं बनी। जो रूल्स थे, जो कानून थी, जो शरिया और हदीस के आधार पर चल रही थी, उसमें लोगों ने उसकी अलग अलग एक्सप्लेनेशन की और इस अलग अलग एक्सप्लेनेशन के आधार पे 4 महत्वपूर्ण स्कूल बने विधिवेत्ताओं के। तो ये जो 4 स्कूल बने, उस स्कूल का नाम था, ये चारों स्कूल इसलिए बने क्योंकि लोगों को शरिया के एक्सप्लेनेशन में कुछ सबके अपने अपने एक्सप्लेनेशन डिफरेंट कर रहे थे, कुछ मतभेद थे उसमें, और इसीलिए सभी लोगों ने अपने अपने स्कूल अलग बना लिए। देयर वर द मलकी, हनफी, सफ़ी। कहता है कि जो 9वीं शताब्दी में कानून की 4 शाखाएँ बनी, शाखाएँ मतलब मजहब बनी, ये मलकी थी पहला, हनफी दूसरा, सफ़ी तीसरा और हनबली चौथा थी। इनमें से प्रत्येक का नाम एक प्रमुख विधिवेत्ता फ़कीह के नाम पर रखा गया था। इनमें से अंतिम शाखा सर्वाधिक रूढ़िवादी थी, मतलब हनबली जो थे वो सबसे अधिक कंजर्वेटिव्स थे। शरिया ने सुन्नी समाज के भीतर सभी संभव कानूनी मुद्दों के बारे में मार्गदर्शन प्रदान किया था। हालांकि यह कॉमर्शियल और दंड देने के संबंध में संवैधानिक मुद्दों की अपेक्षा व्यक्तिक स्थिति, विवाह, तलाक और वरासत के प्रश्नों के बारे में अधिक स्पष्ट था। कहता है कि जो नियम बने, जो कानून बने, शरिया में जो बातें दी गई थी, उसमें कुछ बातें स्पष्ट रूप से थी। सोसाइटी थ्रू इट्स वाज मोर प्राइसेस ऑन द क्वेश्चंस, पर्सनल स्टेटस, मैरिज, डिवोर्स, inheritance than the commercial matter. My dear student, I will show a picture of Mosque. क्या नाम था उस मस्जिद का? लिखा है कंट्री यार्ड ऑफ द मुस्तनसिरिया मदरसा ऑफ बगदाद, फाउंडेड इन 1233. The madrasa was college of learning for the student who had finished their schooling in Maktab. Madrasa were attached the mosque, but big madrasa had a mosque attached to them. कहता है कि मुस्तनसिरिया में 1233 में जो स्थापित हुआ एक मदरसे का आंगन ये दिखाया जा रहा है। आप ये देखिए, आपके सामने एक पिक है। कह रहा है कि ये मुस्तनसिरिया का मदरसा है। यहाँ पे स्कूली बच्चों की शिक्षा दीक्षा का कार्य होता था और जो बच्चे यहाँ से पढ़ लेते थे तो पढ़ने के बाद मदरसा, महाविद्यालय, ये जो महाविद्यालय की तरह मदरसे से, कह रहा मकतब में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर चुके विद्यार्थियों के लिए यह मदरसा महाविद्यालय था। जो छोटी क्लास में पढ़ने के बाद लोग यहाँ पढ़ने आते थे। मदरसा मस्जिद से जुड़े होते थे, लेकिन बड़े मदरसों की अपनी अलग मस्जिद होती थी। तो इस तरीके से एक मस्जिद का आपने सेप देखा, मस्जिद से कनेक्टेड हो जाते थे, मदरसे शिक्षा का केंद्र बन जाते थे। और कभी कभी जब बड़े शिक्षा के केंद्र हों तो फिर मदरसे उसके पार्ट के रूप में
याद किए जाते थे। इसके बाद आई थिंक कुरान पे थोड़ी बातें करेगा। देखिए क्या कहता है इसके बाद। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? यस, आई थिंक कुरान। कहता है कुरान, कुरान क्या है? कुरान शरीफ। कह रहा है एंड इफ ऑल ट्रीज ऑन अर्थ वेयर पेन्स and the ocean were ink with 7 oceans behind it to added its supply, it would not the word of Allah be executed in the writing. It is nothing, it is the places of Allah. अल्लाह के बारे में कुछ बातें कही गई हैं। कहता है कि यदि संसार के सभी पेड़ कलम होते और समुद्र स्याही होती, तो इस तरह के 7 समुद्र स्याही की पूर्ति करने के लिए भी होते, तो भी अल्लाह के जो शब्द हैं वो समाप्त नहीं होते। वर्ड्स को देखिए, अरबिक फॉर्म में कुरान लिखी गई है। कहता है पेज फ्रॉम अ कुरान रिटन ऑन द वेलूम इन द 9th century. It is the beginning of Surah 18 Al-Kafa, the cave which refers to Moses, the 7 sleepers of the Ephesus and Alexander, Zulkarnain. The angular Kufi script has vowel sign in the real for the correct pronunciation of the language. कहता है 9th century में जो ये लिखा गया है, ये चर्मपत्र पर लिखे कुरान का एक पन्ना है, एक पृष्ठ है। इस पर सूरा 18 अल काफ गुफा की शुरुआत है। इसमें मूसा, एफिसस और सिकंदर के 7 सोने वाले जुल्करनैन का उल्लेख करता है। इस कोड़ी कूफी लिपि में ध्वनियों को लाल चिन्ह से दिखाया गया है ताकि उच्चारण में मदद मिल सके। कुरान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। द कुरान इज अ बुक इन द अरेबिक डिवाइडेड इनटू 114 चैप्टर सूरा एंड अरेंज्ड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द लेंथ, इन द shortest being the last. The only exception of this is the first surah, which is short prayers, Al-Fatiha or opening. According to Muslims traditions, the Quran is collections of message, the revelations which God sent to the Prophet Muhammad between 610 and 632. First in Makkah and then in Medina. The task of compiling the revelations was completed sometime in 650. The oldest complete Quran we have today dates from 9th century. There are many fragments which are older, the earliest being the verses engraved on the dome of the rock and the coins in the 7th century. The use of the Quran as a source material for the history of early Islam has posed some problems. The first is that it is the scriptures and the text vested with the religious authority. The theologians generally believe that as the speech of God, the kalam Allah, it has to be understood literally, but the rationalists among them gave wider interpretation to the Quran. In 1833, the Abbasid Khalifa Al-Mamun imposed the view in Trial of Faith of Mihana that the Quran is God's creation rather than his speech. The second problem is that the Quran very often speaks in the metaphor, and unlike the Old Testament, the Torah, it does not narrate events but only refer to them. The medieval Islamic scholars thus had make sense of many verses with the help of the Hadith. Many Hadith were written to help the reading the Quran. Dear student, here clearly explained by the author about Quran. कुरान क्या है? तो कहता है अरबी भाषा में रचित कुरान में 114 अध्याय 114 चैप्टर्स जो सूरा में डिवाइड है, इनकी लंबाई क्रमिक रूप से घटती जाती है। इस प्रकार आखिरी सूरा सबसे छोटा है। इसका अपवाद केवल पहला सूरा है
जो एक संक्षिप्त प्रार्थना अल फतिहा अथवा प्रारंभ है। मुस्लिम परंपरा के अनुसार कुरान उन संदेशों रहस्योद्घाटन का संग्रह है जो खुदा ने पैगंबर मोहम्मद को 610 और 632 के बीच की अवधि से पहले मक्का में और मदीना में दिए गए थे। इन रहस्योद्घाटन का संकलित करने का कार्य किसी समय 650 में पूरा किया गया था। आज जो सबसे प्राचीन और पूरा कंप्लीट कुरान हमारे पास है वह 9th सेंचुरी का है। ऐसे बहुत से खंड हैं, ऐसे बहुत से पाठ हैं जो उससे पुराने हैं, जो सबसे पहले के हैं। वे चट्टान के गुंबद और 7वीं शताब्दी के सिक्कों पर पद हैं। कहता है प्रारंभिक इस्लाम के इतिहास के लिए जो हमारे पास सोर्स हैं, जो हमारे पास एविडेंस हैं, सामग्री हैं के रूप में कुरान के प्रयोग ने कुछ समस्याएं प्रस्तुत की। यदि हम इस्लामिक सोर्स के रूप में कुरान को लें तो हमारे सामने कुछ समस्याएं आएंगी। क्या कहता है? पहली समस्या ये, यह एक ग्रंथ है, एक ऐसा मूल पाठ है जिसमें धार्मिक सत्ता निहित है। मुसलमानों का आमतौर पर यह विश्वास है कि खुदा की बाणी है, खुदा ने इसको लिखा है, खुदा ने इसको बोला है, कलाम अल्लाह है, ये अल्लाह की ये बातें हैं और अल्लाह की बातें होने के कारण इसे शब्दशः समझा जाना चाहिए। हालांकि बुद्धिवादी, धर्मवादी अधिक उदार थे और उन्होंने कुरान की व्याख्या अधिक उदारता से की, लिबरल वे से कुरान को एक्सप्लेन किया। 833 में अब्बासी खलीफा अल मामून ने यह मत लागू किया कि विश्वास अथवा मिहना के मुकदमे में अल मामून ने ये मत दिया कि कुरान खुदा की वाणी की बजाय उसकी रचना है। दूसरी समस्या यह है कि कुरान प्रायः जो मेटाफर पार्ट में रूपकों के रूप में बात करता है और ओल्ड टेस्टामेंट तवरीत के विपरीत या घटनाओं का वर्णन नहीं करता, बल्कि केवल उनका उल्लेख करता है। इसलिए मध्यकालीन मुस्लिम विद्वानों को पैगंबर मोहम्मद के वचनों के अभिलेख हदीत की सहायता लेनी पड़ती है। हदीत पर लिखी गई टीकाओं के आधार पर उनको न्याय करना पड़ता है मुस्लिम कानूनों का, क्योंकि कुरान में किसी घटना का स्पष्ट विवेचन नहीं है, बल्कि कुरान में किसी घटना को बताया गया, उसका सलूशन नहीं बताया गया। और जब ऐसी समस्या आती थी तो वो लोग हदीत के माध्यम से प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। हदीत की सहायता से टीकाओं की रचना करनी पड़ती थी। कुरान को पढ़ने समझने के लिए कई हदीत लिखे गए और ये कई हदीत में इंटरप्रिटेशन लोगों के अलग अलग होते चले गए, बदलते चले गए। तो यहाँ तक आपने कुरान के बारे में पढ़ा, कुरान की जो विशेषताएं थी उनको देखा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में क्या कहता है। बिफोर इट टूक इट्स फाइनल फॉर्म ऑफ द सरिया वाज द एडजस्ट टू टेक इनटू अकाउंट द कस्टमरी लॉ उर्फ ऑफ द वेरियस regions as well as the law of the state on the political and the social order. Shia, Sharia, the customary law, however, the retained their state in large part of the countryside and continued to bypass the Sharia. It matters such as the inheritance of land by daughter in most that the regimes, rulers or his officials dealt routinely with the matter of state security and sent only selected the case to the Qazi judge. The Qazi appointed by the state in each city or locality often acted as an arbitrators in the disputes rather than as a strict enforce of the Sharia. कहता है कि अंतिम रूप लेने से पहले शरीयत को विभिन्न क्षेत्रों के रीति रिवाजों पर आधारित कानूनों, जिसे उर्फ कहते थे, और राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था के बारे में राज्य के कानून सियाया शरिया को ध्यान में रखते हुए समायोजित किया गया था, एक साथ मिलाया गया था। कह रहा है कि अगर थोड़ा पहले चलें इन चीज़ को समझने के लिए, कहता है कि जो व्याख्या की गई थी, जो 4 सब स्कूल खुले थे, 4 जो धार्मिक स्कूल मजहब बने थे 8वीं-9वीं सेंचुरी में, मलकी, हनफी, सफ़ी और हनबली, इन लोगों ने जो व्याख्या की इस्लामिक रूल्स की, इस्लामिक लॉ की, वो थोड़ी अलग अलग हट की थी। इसमें जो सबसे लास्ट हनबली थी वो सबसे
क्या थे, कंजर्वेटिव्स थे, रूढ़िवादी थे। बाद में कहता है कि जो मेन था कानूनी मुद्दों के बारे में मार्गदर्शन किया गया इसके सरिया में। हालांकि वाणिज्यिक मतलब कमर्शियल ट्रेड्स और जो दांडिक थे, पनिशमेंट थे, संवैधानिक मुद्दों की अपेक्षा व्यक्ति की स्थिति, विवाह, तलाक और विरासत के प्रश्नों के बारे में ज़्यादा स्पष्ट रूप से इसमें बताया गया इस्लामिक रूल्स में। अंतिम रूप लेने से पहले शरिया को विभिन्न क्षेत्रों के रीति रिवाजों पर आधारित कानूनों और राजनीति तथा सामाजिक व्यवस्था के बारे में राज्य के कानून जिसे सियाया शरिया कहा गया को ध्यान में रखकर ही बनाया गया। लेकिन जो रूरल एरिया थे ये बहुत बड़े भागों में रीति रिवाजों पर आधारित कानूनों ने अपनी ताकत बरकरार रखी। कहने का सेंस ये है कि जो गांव ग्रामीण इलाका थे उसमें ट्रेडिशनल जो विचारधारा थी वो बराबर चलती रही। जमीन और बेटी के उत्तराधिकार जैसे मामलों में, लड़की का उत्तराधिकार और ज़मीन पर उत्तराधिकार जैसे मामलों में शरिया के पालन से ये लोग बचते रहे। शरीयत में कहा गया है कि लड़कियों का भी अधिकार है, लेकिन वो एक निश्चित उसका विवेचन करेंगे तब पार्ट में बांटते हुए, लेकिन कभी भी इन चीज़ों को डायरेक्ट नहीं कहा गया। अधिकतर शासन में शासक और उसके अधिकारी राज्य की सुरक्षा के मामलों को नियमित रूप से निपटाते थे। मतलब अगर आप जनरली देखें तो शासन का जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने के लिए शासक करेगा और शासक के साथ साथ उसके अधिकारी इस मामले को सॉल्व करते थे। केवल कुछ ही चुने हुए मामले काजी के पास भेजते जाते। जैसे कुछ अगर धार्मिक मामला हो तो मुस्लिम एम्पायर में काजी के पास चला जाता था। काजी राज्य द्वारा प्रत्येक शहर में अथवा प्रत्येक बस्ती में नियुक्त किया गया एक पद था जो अक्सर शरिया की कड़ाई से पालन कराने के बजाय विवाद के सम्मत पर हल, विवाद को सॉल्व कराने का प्रयास करता था, विवाद को सॉल्व करने के लिए मध्यस्थता करता था। इस प्रकार काजी का काम धार्मिक मामलों को शांत कराना था, उसकी मध्यस्थता करके उसको किस तरीके से कंट्रोल करना था। कहता है मध्यकालीन इस्लाम अब बात करता है, कहता है कि द ग्रुप ऑफ द रिलीजियस माइंड पीपुल इन द मिडल इस्लाम नोन एज सूफी। एक पैराग्राफ और ऊपर चलिए थोड़ा सा। बिफोर इट टुक इट्स फाइनल yes यहाँ से a group of religious mind people in the medieval Islam known as Sufi sought a deeper and more personal knowledge of God through the asceticism, Rahbaniya and mysticism. The more society gave itself up to the material pursuits and pleasures, the more the Sufi sought in the renounce the world, juhud, and rarely the God alone, tawakkul. In the 8th and 9th century, ascetic the intellects were elevated to a higher stage of the mysticism, the tasawwuf, by the idea of pantheism and love. Pantheism is the idea of nonsense of God. Pantheism is idea of oneness of God. Sorry, extremely sorry to say, वर्ड में थोड़ा दिक्कत हुई। पैनेथिज्म इज द आइडिया ऑफ वननेस ऑफ द गॉड एंड हिज सर्टेन क्रिएशन which is implies that the human soul must be united with its maker. Unity with the God can be achieved through in the inherited love for God ishq, which the woman sent Rabia of Basra 891 preached in her poems. Bayazid Bistami 874 and Iranian Sufi was the first to teach the importance of the submerging the self fana in God. Sufi used musical concert sama in induce effects and the stimulates emotions of love and the passions.
Dear student, here clearly defined by the author कि मध्यकालीन जो इस्लामिक समाज था उसमें धार्मिक विचारों वाले लोगों का एक समूह बन गया। इसमें सूफ़ी, इन्हें सूफ़ी कहा गया। सूफ़ी ये लोग किस चीज़ पे थे? ये लोग कठोर तप पे विश्वास करते थे, तप करते थे, तपश्चर्या पे थे ये लोग, जिसे रहबानिया कहा गया। और रहस्यवाद के जरिए, मिस्टिसिज्म के चलते ये लोग खुदा का अधिक गहरा और अधिक व्यक्तिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। समाज जितना अधिक भौतिक पदार्थों और सुखों की ओर लालायित होता था, सूफी लोग संसार का त्याग, जुहूद उतना अधिक करना चाहते थे और केवल खुदा पर भरोसा, तवक्कुल करना चाहते थे। 8वीं और 9वीं शताब्दी में जो इनकी एक्सट्रीम अस्केटिज्म थी और वैराग्य की जो प्रवृत्तियाँ थी, सर्वेश्वरवाद और प्यार के विचार वाले विचारों द्वारा ऊंचा उठकर रहस्यवाद तसव्वुफ की ऊंची अवस्था पर पहुंच गया। सर्वेश्वरवाद ईश्वर की, उसकी सृष्टि के एक होने के विचार है, जिसका अभिप्राय यह था कि मनुष्य की आत्मा को उनके निर्माता यानी परमात्मा के साथ मिलना चाहिए। ईश्वर से मिलन, ईश्वर के साथ प्रेम, तीव्र प्रेम, इसे इश्क कहा गया। ईश्वर के साथ मिलन और ईश्वर के साथ प्रेम के जरिए हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी उनकी मान्यता थी। इस इश्क का उपदेश एक महिला संत बसरा की राबिया, जिनकी मृत्यु 1891 में हुई, द्वारा अपनी शायरी में दिया गया था। बयाजीद बिस्तामी, जिनकी मृत्यु 1875 में हुई, जो एक ईरानी सूफी थी, पहला व्यक्ति था जिसने अपने आप को खुदा में लीन, फना करने का उपदेश दिया। बयाजीद बिस्तामी वो पहला व्यक्ति था जिसने अपने को पहली बार कहा कि मैं अपने को खुदा में लीन कर लूँगा, फना कर लूँगा। सूफी आनंद उत्पन्न करने और प्रेम तथा भावेश उद्दीप्त करने के लिए संगीत समारोहों, समा का उपयोग करते थे। तो इस तरह सूफीज़म के बारे में और भी विस्तार से हम पढ़ेंगे आपके क्लास 12th में, जब हम भक्ति सूफी ट्रेडिशन पढ़ेंगे। या आप क्लास सीनियर 12th की सूफीज़म की सेकेंड बुक उठाइए, सेकेंड बुक थीम 2 में आपको भक्ति सूफी ट्रेडिशंस मिलेगा, वहाँ पे सूफीज़म के बारे में पढ़िए, आपको वहाँ से बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।